میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میرے چچا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میرے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اور کہنے لگے آج سے تم میرے بیٹے ہو اور ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے چچا دبئی چلے گئے۔ گھر پر میں اور صرف چچی ہی رہتے تھے۔ میری چچی بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ چچا اور چچی کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چچی دکھنے میں چاچو سے جوان لگتی تھی، وہ بہت آزاد خیال تھی۔ چچی روز مجھے پیسے دیتی اور کہتی میرے لیے دکان سے کھیرا لے آؤ۔ میں چچی کے لیے روز ایک کھیرا لے آتا، لیکن میں حیران ہوتا کہ آخر چچی کھیرے کا روز کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں نے چچی سے پوچھا کہ چچی آپ کھیرے کا کیا کرتی ہیں؟ تو چچی کہنے لگی تمہیں کیا پتا، ایک عورت کے لیے بغیر شوہر کے راتیں گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کھیرے کے ساتھ کیا کرتی ہوں تو رات کو میں کھڑکی کھلی چھوڑ دوں گی، اندر آ کے دیکھ لینا۔ اگلی رات میں چچی کے کمرے کے پاس چلا گیا تو چچی نے کھڑکی کھلی چھوڑی ہوئی تھی، اور جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو چچی ایسی حالت میں تھی جس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر کھینچ لیا اور پھر پوری رات میرے ساتھ۔ میں آج پھر اسی دکان کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے سبزی والے سے کہا کہ یہ پیسے لو اور ایک بڑا سا کھیرا دے دو۔ دکان والا ہنس پڑا اور کہنے لگا اتنے سارے کھیروں کا روز تم کرتے کیا ہو؟ تم اچھے بھلے خاندان کے لگتے ہو، پھر اس کھیرے کا کیا کرتے ہو؟ اس کا سلاد بناتے ہو یا پھر کچھ اور بھی کرتے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے میرا سامان دو اور مجھے اور بھی کام ہے۔ میں نے کھیرا لیا اور گھر آیا۔ چچی پہلے سے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ میری چچی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کا رنگ نہ صرف سفید تھا بلکہ سرخ بھی تھا۔ ان کے رخسار بھی سرخ تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ اتنی زیادہ خوبصورت کیسے ہے، ایسی خوبصورت جلد تو پٹھانوں کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ میری دادی نے جب انہیں دیکھا تو فوراً سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی تو اسی کے ساتھ۔ غرض یہ کہ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں جب کھیرا لے کر گھر پہنچا تو چچی کھیرا دے کر بہت خوش ہوئی اور فوراً میرے ہاتھ سے کھیرا لے کر اندر چلی گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ شام کے بعد چچی کوئی کام نہیں کرتی تھی اور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ دادی کہتی تھی کہ شاید اس کو چچا کا فون آتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، 1 سال بعد واپس آ جائے گا، میری بہو کا دل نہیں لگتا ہوگا۔ میری دادی چچی پر فدا تھی، ان کو ان میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک ساس ہو کر وہ اپنی بہو سے اتنا پیار کرتی تھی۔ چچی کے بھی سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن ان میں ایک بڑی عجیب عادت تھی، شام ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اس بات پر بڑا حیران تھا کہ آخر وہ شام ہوتے ہی کھیرا کیوں منگواتی ہیں اور پھر اپنے کمرے میں کیوں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ آخر وہ اس کھیرے کا کیا کرتی ہیں؟ مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بڑا پریشان تھا۔ دکان والا بھی مجھے تانے دیتا تھا۔ میں نے دوسری دکان پر جانے کا سوچا، لیکن دوسری دکان یہاں سے کافی دور تھی، اس میں میرا وقت ضائع ہوتا تھا اور میں گرمی میں اتنی دفعہ چکر نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے ڈھیٹ ہو کر یہیں سے لے لیتا۔ چچی سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، جو میرے پاس پیسے ہوتے تھے وہی خرچ ہو جاتے تھے اور مجھے یہ بالکل بھی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ دادی کہنے لگی کہ اگر تم نے پیسے لے کر کام کرنا ہے تو پھر تم سے کام کروانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے بھائی سے ہی کہہ دے گی۔ اس وجہ سے مجھے اس بات سے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کھیرے کو سلاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ سلاد دوپہر کے وقت کھاتے ہیں، لیکن چچی اپنے کمرے میں کھیرا اس وقت لے کر جاتی ہیں جب کھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ چچی بھی کھیرے کے ساتھ کچھ اور ہی کرتی تھی۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ گیا تھا، میری جیب بھی خالی ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران چھوٹی عید آئی اور ہم لوگوں نے عید بھی گزار لی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، میں بازار سے اکٹھا سلاد لے کر آ گیا اور لا کر فریج میں فریز کر دیا اور چچی سے کہا کہ میں اکٹھا سلاد لے آیا ہوں۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ اب چچی کھیرا نہیں منگوائیں گی، کیونکہ گھر میں اکٹھا سلاد آ گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ گھر والے بھی خوش ہوں گے، اور مجھے یہ تھا کہ چچی اب مجھے کام نہیں کہیں گی۔ لیکن میں تو حیران رہ گیا جب اگلے ہی دن چاچی نے مجھے پیسے دیے اور بولی میرے لیے ایک کھیرا لے کر آنا، کل بھی تم لے کر نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ چچی اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اب تو میں گھر میں اکٹھا سلاد لے آیا ہوں۔ اس بات پر وہ کہنے لگی تم بہت معصوم ہو، تمہیں کیا پتا ایک عورت کے لیے اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے چچی کی بات ماننی پڑی، لیکن میں حیران تھا کہ اب تو میں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا، پھر بھی وہ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کروا رہی تھی؟ خیر جو میں نہیں چاہتا تھا مجھے وہی کرنا پڑا۔ ایک دن میں نے چچی سے پوچھا کہ آپ کھیرے کا کیا کرتی ہیں، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں رات کو کھڑکی کھول دوں گی، تم خود ہی آ کر دیکھ لینا کہ میں اس کا کیا کرتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ چچی بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ ہمارے خاندان میں پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی شادیاں ہوئیں اور ان کے گھر میں ان کی بہو بھی آئیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا اتنا مذاق نہیں تھا۔ چچی اب مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی دادی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن چچا کا فون آیا
वो दादी से कह रहे थे, आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है, वो मुझे फोन नहीं करती, ना ही मुझसे बात करती है। पर दादी ने कहा था कि वो तो शाम को सारे काम खत्म करके तुमसे बात करती है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती, मुझे ये था कि शायद उसे तुम्हारे साथ बात करनी होती है, तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरे चचा इस बात पर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात करते तो हैं लेकिन इतना वक्त भी नहीं। चचा ने शायद उनकी इज्जत रख ली थी और बात को संभाल लिया था। मेरी दादी को भी अब चची पर शक होने लगा था। दादी ने चची को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा कि सारा खाना तुमने बनाना है। इस सारे काम में रात के 10 तो बज ही जाने थे। दादी के घर में खाना देर से खाया जाता था। चाची ने 2 दिन तो ये काम किया, इसके बाद वो तंग पड़ गई। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। एक तो मेरे शोहर को बाहर भेज दिया है और ऊपर से मुझसे इतना काम लिया जा रहा है। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मुझसे नहीं बनता। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी आई पर आ गई तो फिर मेरी दादी भी क्या करती। घर में झगड़ा डालने से बेहतर था कि चची जैसे कह रही थी उनकी बात मान ली जाती। दादी ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने चची की बात मान ली, इसलिए वो भी खामोश हो गई। अब मैंने भी ठान ली कि मैं भी देखूंगा कि चची आखिर करती क्या है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मैं चची के कमरे की खिड़की के बाहर क्या कर रहा हूँ और अंदर क्यों जाकर देख रहा हूँ तो मेरी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती। दादी तो मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाती। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चची को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि चची ऐसा भी क्या कर रही थी। वो तो कह रही थी कि खिड़की को खुला छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहां से वापस चला आया। सुबह मैंने चची से कहा कि आपने खिड़की क्यों नहीं खोली, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम देखने चले आए। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम मेरे कमरे में झांकोगे। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनके मूड का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई बात कर देती तो कभी कोई, और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती थी। मेरी दादी अक्सर उनकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी नाशुक्री हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी दादी आगे से कहती कि खूबसूरती का अचार डालूं, कोई इखलाक कोई सलीका भी तो होना चाहिए। यही मेरी दादी थी जो पहले कहती थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर ही जल जाएं। घर के कामकाज तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी दादी का नजरिया बदल गया था। चची की कोई बहन नहीं थी, लेकिन एक कजन थी, वो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत थी। मेरी दादी पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए लेना है, लेकिन अब मेरी दादी ने तौबा कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर चची ऐसी थी तो उनकी कजन भी ऐसी ही होगी, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। चचा यहाँ पर थे नहीं, अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है वो भी हैरान हो जाते। अगले दिन मैं फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी दादी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह किधर जा रहे हो। मैंने कहा कि मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूँ। मेरी दादी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं दादी के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया जब यकीन हो गया कि मेरी दादी सो गई हैं। लेकिन इस दफा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ऐसी आवाजें थी कि जैसे कोई तकलीफ में है। ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे चची को बहुत दर्द हो रही है। क्या वो चाचू की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं था कि उनको चाचू की याद आती है। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने चची से कोई जिक्र नहीं किया, वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे तो रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खुलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी और आज दादी ने भी मुझे डांट दिया था, इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी जाती जिंदगी में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें भी मुझसे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। चाचू ने फोन करके बताया कि वो 2 माह के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन चाची बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, अभी छुट्टियां तो उन्हें नहीं हुई और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी दादी ने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शोहर वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी चच्ची ने उल्टा जवाब दिया और कहने लगी, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये पोता तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी? दादा की पेंशन आती थी और चचा भी तो सारा घर चलाते थे। मैं यतीम था और दादी के घर रहता था। दादी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने दादी को खामोश करवा दिया।
मैंने कहा चची अपना रंग दिखा रही है, इस तरह घर का माहौल खराब होगा। चची अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। चची छोटी छोटी बातों पर ताने दे रही थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला ये रवैया अब खत्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की औरत है। मैं अब चची से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं ला के दे देता था। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था और रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं समझा कि आज वो मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि चची ने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब आज वो मजाक नहीं कर रही थी। वो खीरे को खुश्क करके गर्म करके अपने चेहरे पर रगड़ रही थी। वो जब मेरे सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब सा कुछ कहा। मैं उसी वक्त वहां से वापस चला गया। अगली सुबह उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर खीरा रगड़ती हूँ और कल भी वही रगड़ रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई जिल्द उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जिल्द बाहर आती है। तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि चच्ची पागल है और 2-3 दिन तक मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि खूबसूरती के लिए अपने आप को इतनी अजियत देना, इंसान अपने साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। नॉर्मल खीरा रगड़ने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको खुश्क करके और सख्त करके अपने चेहरे पर रगड़ना, ये तो इंतहाई अजियत का अमल था। मैंने सोचा कि अगर वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। चाचू 2 महीने के लिए वापस आ गए। चाचू और चची रोज झगड़ते थे। चाची बहुत जिद्दी थी और शायद चाचू को भी चची के किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ रहे थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। चाचू ने कहा कि मैं पागल लड़की के साथ नहीं रहूंगा। ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसके न जाने कितने यार हैं। इतना बात करते कराते बात तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि उनका घर खराब ना हो। चाची को बहुत समझाया, लेकिन चची अचानक से अपने घर चली गई और वापस आने से इनकारी हो गई। हम उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और फिर कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे चाचू से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे चाचू को भी गुस्सा आ गया और चाचू ने कहा कि मैं तो पहले ही उसको नहीं रखना चाहता था और मुझे पता था कि उसके और लोगों के साथ भी चक्कर है और रोज रात को ये अपने यारों से बात करती है, जिसकी वजह से खुसर खुसर की आवाजें निकालती रहती है। मैं आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। जाने चाची किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत गरूर था। मेरी दादी भी बहुत परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और फिर दोनों में अलहदगी हो गई। चाचू ने कहा कि आपने लड़की की शक्ल तो देखी थी, लेकिन उसका किरदार, उसकी अकल नहीं। शक्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि सीरत और खुशगुफ्तार लड़की देखकर फैसला करना चाहिए। और औलाद का मसला मुझ में नहीं था, बल्कि उसमें था, लेकिन मैं फिर भी उसको बर्दाश्त कर रहा था। मैं और तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेवफाई नहीं। वो ये काम बहुत पहले से कर रही थी। मैं जब मुल्क से बाहर था तो मैं उसको ऑनलाइन देखता था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। न जाने वो किससे बात करती थी। मैंने उसका पर्दा रखने के लिए ही आपसे झूठ बोला था कि हमारी बात होती रहती है। इसके बाद चचा ने एक दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी उन्होंने एक तलाक याफ्ता औरत से की। वो पहली चची की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इंतहाई तमीज़दार और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। उनको देखकर ऐसे लगता है कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रंग रूप में कुछ नहीं रखा, असल खूबसूरती इखलाक की खूबसूरती है।